Hi guys, my name is Sunny Chatterjee and I'm a communication teacher. Welcome to BartaBuzz channel. So guys, today we're going to learn the introduction of spoken English. So before we start the lesson, please click on the like button and definitely click on the bell button. And then after, let's start the class. So guys, keeping in view that most of our viewers might not be comfortable in English language, today we're going to discuss both in English language as well as in Hindi language. सो मेरे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि इंग्लिश कोई क्वालिफिकेशन की टैग नहीं है। इंग्लिश एक भाषा है, इसको आप महज भाषा की तरह ही लीजिए। इसलिए सबसे मेन फैक्टर ये है कि आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब है आप किसी से टॉक कर रहे हो, इंटरैक्ट कर रहे हो, आप किसी से कन्वर्स कर रहे हो, कुछ डिस्कस कर रहे हो। देयर शुड बी कॉन्फिडेंस विद इन योरसेल्फ। इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस, देन देयर इज नो रीजन of knowing any language, whether you know Hindi, you know Bengali, you know English, you know any language throughout the entire world, whatever languages are available in front of us, no matter whatever language you're good in, unless and until you know how to communicate, you'll never be able to become a very good speaker. Why? Because language is just a source, but communication is a skill. बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश का मतलब होता है अगर आप बहुत ज्यादा बहुत अच्छे डायलॉग आप दे पा रहे हो इंग्लिश में, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे स्पीचेस दे पा रहे हो इंग्लिश में, जस्ट लाइक आवर बराक ओबामा, जस्ट लाइक संदीप महेश्वरी, तो वो बहुत अच्छे इंग्लिश में कहलाए जाएंगे। उनको बहुत अच्छा कम्युनिकेशन टीचर माना जाएगा, उनको बहुत अच्छा इंग्लिश स्पीकर माना जाएगा। दैट इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग आइडिया गाइस। सो लेट्स चेंज द कंसेप्ट। हमें कंसेप्ट चेंज करना है। सो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि इंग्लिश एक ऐसा जरिया है जिससे आप किसी से भी वार्तालाप कर सकते हो, टॉक कर सकते हो इंग्लिश में। एंड दैट इज द मेन आइडिया, मेन कंसेप्ट ऑफ नोइंग इंग्लिश। एंड देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू लर्न दिस इंग्लिश। सो ये आपको पहले डिसाइड कर लेना है अपने आप में कि इंग्लिश को वॉमिट नहीं करना है, रादर इंग्लिश को बोलना है। बिकॉज आप इंग्लिश बोलते हैं तो लोग समझते हैं, अगर इंग्लिश आप वॉमिट करते हैं सो डेफिनेटली लोग आपको इग्नोर करके चले जाते हैं। सो आप पहले अपने दिमाग से ये थॉट दूर कीजिए कि जब तक कोई इंसान बड़े बड़े डायलॉग डिलीवरी देना या बड़े बड़े स्पीचेस जब तक नहीं दे सकते हैं तब तक उनको हम लोग इंग्लिश स्पीकर नहीं मान सकते हैं। बस ये थॉट आपको दूर करना है। बिकॉज अगर मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इफ आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज गाइज। टुडे द एंटायर वर्ल्ड स्पीक्स इन इंग्लिश। Today, the most popular language in the world is English. And without English, we can't get jobs normally. We can't do international interactions normally because English is the most popular language throughout the entire world. So guys, जैसे कि आप देख सकते हैं, as you can see over here, that under spoken English, there are 4 different parts. First, grammar. Second, letter. Third, words. And fourth, sentence. Now, you have to understand one thing very much clearly. Whenever you would walk into a spoken English organization or institution, the first thing they are going to teach you is grammar. सबसे पहले वो आपको ग्रामर सिखाएंगे। Second, they are going to teach you letters. वो आपको letters सिखाएंगे। Third, they are going to teach you new words. वो आपको new words सिखाएंगे। And fourth, they are going to step into sentence. उसके बाद चौथे पायदान पर वो आपको sentence सिखाएंगे। पर मेरे दोस्त, गलती यहीं से तो शुरू होती है। English एक language है। If you learn in language starting from grammar, now grammar consists of many different things. There is noun, there is pronoun, there is article, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjunction, narration change, voice change. There are a large number of things in grammar. And if you think that after learning grammar, then after you would be learning English, that's absolutely impossible. क्योंकि अगर आप ये समझ लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि ग्रामर सीखने के बाद उसके बाद इंग्लिश सीखेगा, guys, ये कभी नहीं होता, neither it is possible. Because एक भाषा, एक लैंग्वेज जो आप बचपन से बोलते हैं, चाहे वो बंगाली हो चाहे वो हिंदी हो, गाइस, सबसे पहले एक बच्चा अपनी माँ से सीखता है, तो क्या वो माँ से अपने ग्रामर सीखता है? दैट इज नॉट पॉसिबल। सो शुरुआत जो हमें करना है, दैट इज थ्रू सेंटेंस। The start that we have to do in order to learn in language is through sentence. Because unless and until we learn sentence, we won't be able to learn any language, and then after we won't be able to speak that language. Fine? So इन चारों में से जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, that is sentence. आपको सबसे पहले sentence सीख लेना है. That is very very important. Now guys, जब हम लोग spoken English में sentences की बात करते हैं, so while talking about sentence, 2 different elements come in front of us.
First one is grammar focused and second one is broken English. Now if I talk about grammar focused, what is grammar focused? वही सेम चीज, आप पहले ग्रामर सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड मेनी अदर थिंग्स, फाइन. और उसके बाद आप इंग्लिश बोलना शुरू कर रहे हैं, इंग्लिश सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर रहे हैं, फाइन. सो दैट इज ग्रामर फोकस्ड. बट इफ आई टॉक अबाउट क्विक लर्निंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश, सबसे पहले आपको ग्रामर फोकस नहीं होना है. या ग्रामर इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट. विदाउट ग्रामर यू कैन नेवर बी अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश, बिकॉज बाद में जाके अगर आप बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनते हो तो आपको ये मद्देनजर रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी ग्रामर में गलती ना हो. बिकॉज व्हेन पीपल वुड बी लुकिंग अप टू यू, when people would be following you, they would definitely follow whatever you speak. So if you speak at that point of time without proper grammar in your English sentences, definitely people are going to catch your mistakes and people are not going to follow you any further. लेकिन आप जब एक beginner हो, when you are a beginner, you don't know how to talk in English, you don't know how to communicate in English, तब आपको broken English से शुरू करना है. Now guys, हमें ये पता है कि किसी भी sentence का जो basic होता है, that is subject plus verb plus object. Now this is the basis. You have to learn this very clearly. This is the basis. Subject, verb and object. Now here from our journey towards spoken English starts. हम लोग शुरू यहीं से करते हैं लेकिन खत्म करते हैं हम लोग spoken English में. So guys, my suggestion to you always would be not to focus on grammar. No, it's a big no. Because if you are not from English medium and if you still want to speak English just like an English medium, definitely you need to take a little bit of twist and turn. Definitely success की कोई shortcut नहीं होती. But we must also understand this thing that an English medium student takes 12 years to learn English. Fine, उसको KG से क्लास 12 तक टाइम मिलता है उसको इंग्लिश सीखने में. But if I talk about a Bengali medium student or a Hindi medium student, that guy doesn't get that much of time to learn English because पहले तो वो क्लास 10 तक हिंदी और बंगाली मीडियम सीखता है और बाद में जाकर उसको पता चलता है कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, हमें इंग्लिश की ज़रूरत है, जॉब पाने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत है और उसके बाद उसको कहीं स्पोकन इंग्लिश सेंटर में जाना पड़ता है जहाँ उसको फिर से शुरुआत होती है उसकी ग्रामर से. एंड हेयर फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. 6 महीने बाद वो बंदा बोलता है that sorry sir, I couldn't learn English, मैं इंग्लिश सीख नहीं पाया because मैं कुछ समझ ही नहीं पाया. That's why I would suggest everybody to revise each and everything that you learn starting from KG to class 10, especially to Bengali and Hindi medium students. आपने जो सीखा है अपने प्राइमरी स्कूल डेज से शुरू करके क्लास 10 या 12 तक आपको हर चीज को फिर से रिवाइज करना है. फाइन. और उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है, कैसे आप करेंगे, क्या आपको बुक लेके बैठना है? नो गाइस, आपको बुक लेके बैठना नहीं है. या definitely I would say book पढ़ना बहुत अच्छी बात है. Reading books is very good, but also I need to mention over here कि English जबकि एक भाषा है, हिंदी एक जैसे भाषा है, बंगाली जैसे एक भाषा है, हम लोग बोलकर सीखते हैं. इन द सिमिलर मैनर, इन द सिमिलर फैशन यू हैव टू स्पीक इंग्लिश. और इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत होती है हमारे टेलीविजन से. गाइस, हम लोग पूरे दिन टेलीविजन देखते हैं, हम लोग मोबाइल में घुसे हुए रहते हैं. वी आर ऑल द डे, all throughout the entire day, we are all the time in mobile, we are all the time in television, and we know definitely that in all these places, in all these sectors, whether it's the social media or whether it's television, we always get exposure to English. So जितने आप English सुनोगे, आपकी English में concept उतनी clear होती रहेगी. So your first target should be speaking English, not to start with grammar. So अगर आप English speaking से focus करते हो, that's very important. अब मैं आपको ये suggestion दूंगा कि आप कौन कौन ऐसे वेज हैं, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिससे आप इंग्लिश में घुल मिल सकते हो, आप इंग्लिश को और अपने करीब ला सकते हो. सो ओवर हियर यू कैन सी दैट 4 steps are written over here. First one, newspaper and books. Number 2, English movies. Number 3, English TV shows. And number 4, English songs. So guys, these are the 4 main steps. These are the 4 main ways through which you can actually bring English down in your life. Now let's see, how is this possible? First one, if I talk about newspaper and books, guys, न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है या तो बुक्स एक ऐसी चीज है जहां आपको रेडीमेड सेंटेंसेस मिलते हैं. आप सेंटेंस को पढ़ते जाते हैं, वहां आपको नए नए वर्ड्स मिलते हैं और जितनी आप वर्ड्स नए नए जानते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस इंग्लिश को और सीखने में बढ़ती रहती है, आपकी इच्छा बढ़ती रहती है, आपकी इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ती है. Number 2 is English movies. Of course, in English movies we see
lots of communications between different artists, different characters over there. So basically what they do, they don't speak that much of bookish English. They normally talk to each other in their casual English. So more we are going to watch English movies, more we are going to get introduced to what kind of English do the people over there in foreign countries speak. Third, इंग्लिश टीवी शोज. गाइस, हम लोग जितना टीवी शोज देखते हैं, छोटे छोटे स्टोरीज के द्वारा हम लोग इंग्लिश को और भी जानने का कोशिश करते हैं. वो इंग्लिश हमारे और करीब आती रहती है, वो इंग्लिश भाषा हमारे लाइफ में और घुलती मिलती रहती है. सो इन द सिमिलर मैनर, इन द सिमिलर फैशन हमें इंग्लिश सीखने में और सुविधा मिलती है. एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज इंग्लिश सॉन्ग्स. डेफिनेटली गाइस, आज के ज़माने में अगर आपको एक्सेंट अच्छा करना है, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छा करना है, सो नो वे कैन बी बेटर देन इंग्लिश सॉन्ग्स. बिकॉज व्हेन यू सिंग, आप जब गाना गाते हो, आप कॉपी करने की कोशिश करते हो द वे द आर्टिस्ट हैज डन. यू वांट टू कॉपी द सेम स्टाइल ऑफ आर्टिस्ट. और इस चक्कर में आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, इसी चक्कर में आपका एक्सेंट अच्छा होता है. सो व्हाट हैपेंस, English song, I would recommend that if you go for English songs, you are definitely going to improve your accent and pronunciations a lot to a huge extent. So आज के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे कि आप आज से हमारे चैनल BartaBuzz के संग इंग्लिश सीखना शुरू किए हैं, you have to keep one thing in your mind, and that is very clearly, very explicitly, and that is English कोई क्वालिफिकेशन नहीं है. इंग्लिश जस्ट एक भाषा है. जितने अच्छे से आप ये भाषा बोलोगे, उतना ही लोग आपको इस भाषा में कॉन्फिडेंट पाएंगे, आपको खुद में कॉन्फिडेंस महसूस होगी. लेकिन वो ग्रामर के थ्रू से नहीं करना है, उसके लिए और भी कई डिफरेंट वेज हैं, एज आई ऑलरेडी शोड यू ओवर हियर. सो आपको यही करना है गाइस कि इंग्लिश को इतना भी मत इंपॉर्टेंस दे दीजिए कि आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाए कि जब तक मैं बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स, बहुत बड़े स्पीचेस नहीं इंग्लिश में देना शुरू कर दूं, तब तक मैं इंग्लिश में अच्छा कंसिडर्ड नहीं होऊंगा. That is absolutely a wrong idea. That is absolutely a wrong concept, a wrong notion. You have to keep one thing in your mind कि आप जितना इस भाषा को, चाहे गलत हो या सही हो, चाहे ग्रामेटिकली गलती हो, during the beginning आप इसको बोलना शुरू करें, आप देखना शुरू करें इस भाषा को. इस भाषा को देखने के लिए मैंने कई सारे प्रोसेसेस आपके सामने यहाँ रखा है. So the more you're going to do it, the more you're going to learn it. So keep one thing in your mind. Start learning English from today onwards and start using these processes. जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा. So for more updates, stay tuned. Till then, bye bye. See you. Take care.